क्यों चाहिए? Anyone there who says we don't need any temple? Okay, everyone wants. I think then session is over. Okay, let's see some points so that if anyone comes up with the argument or some challenge to you, why do we need a temple? Or you should also know more. Why do we need a temple? So, yeah, this is very beautiful temple. This is Mayapur Chandrodaya Mandir. If anyone don't know, or Mayapur ISKCON, which will be inaugurated in just 1 or 2 years. This is the biggest temple. This will be the biggest temple in the world, around I think 20 acres, on the 20 acres of land, approximate. So we already have so many problems right now, like food, clothing, shelter, some disease also coming up like corona. And in the midst of that, someone says we need a temple, or someone argues instead of building temples, why not build some hospitals, some universities, so that we can cure people, we can educate people. So even though there are so many NGOs also which are running, those who are giving free food, free knowledge, free medicines, but still there are so many problems which are still unsolved. We can say, we can simply say that, मतलब मंदिरों से ज़्यादा तो NGOs ही है अगर देखा जाए तो, प्रैक्टिकली इफ इट टॉक्स ऑन दिस स्केल ऑफ नंबर्स, मतलब पूरे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने एनजीओ हो गए उसके कुछ ही परसेंट टेम्पल है, बिकॉज एनजीओ में यू कैन, देर कैन बी सम करप्शंस, or then there can be some false practice also or malpractice, which is very difficult in temple. We will see how and why. So first of all we can start with the acronym of temple itself. हम लोग सब लोग टेम्पल टेम्पल बोलते हैं, बट व्हाट इज द एक्चुअल एक्रोnym? So T stands for tranquility, E for education, M for medication or meditation also, both. P for purification, L for love, and E for engagement. So we will go one by one with all of these alphabets or the abbreviations. Let's start with the first one. That is the tranquility. तो हम सबको फूड क्लोथ शेल्टर का लगता है, दैट आर द बेसिक ह्यूमन नीड्स, एंड दैट्स व्हाट वी लर्न इन आवर स्कूल ऑल्सो, हिस्ट्री और civics. That is the gross bodily need. But there is also a peace of mind when we get adult, or we come to the certain age of life. We say we want peace of life in every aspect of life, whether it's a job or higher education or a marriage life or a workplace. We all need. That is also a necessity of what? It's a necessity of a mind, or it's a basic need of our mind to have a peace. But where can we get peace if we remove temple from the society? What do you think? आप में से वर्किंग कितने लोग हैं? Okay, very few, and most of the I think are students. Okay, so for working people, since I'm also working, so people think of some movies, some short break or some short trips. That's what we can think of, or going to some parties. But what happened after going to such places? After a while, we become more disturbed, or we get some kind of impressions. Let's say if we went to movie or some friend's house, we get impression, oh, he's doing better than me, he's having so many things I don't have, and we can carry that kind of impression or that kind of consciousness, and we again try to struggle or exert ourselves more. So गए तो पीस के लिए गए थे, but we get more disturbed. Or sometimes people, nowadays people are getting disturbed by movies also. They are running the trend of like boycott Bollywood completely. Many of you might know. Means even though things which are supposed to give a peace to the mind are making people more disturbed or more agitated. So WHO, World Health Organization, also declared in their research that AIDS and cancer, more than AIDS and cancer, people are suffering from mental.
health problem. People are having so much anxiety, so much depression, so much like complicated relationship that they can't handle by themselves. They need some kind of peace. But where you get that kind of peace? In temple only. If you are unknown, if you don't know any kind of philosophy also, if you are completely stranger also, visit, and if you are visiting any temple, the moment you take a darshan of deity, or you just sit in temple hall, a midst of the crowd, you can see it's a Sunday evening now, and Kartik month is also going on. It's a hugely crowded temple, it's nearby to beach also, but still you will feel a tranquil, you will feel a peace of mind. What you see, the crowd is there, the noise the sound is there, the peoples are there, but you will feel peaceful. But stay up local station pe chale jao, you will not feel peaceful, you will feel very angry, very anguish. So this is the thing which happen only in temple. Even though it's very crowded, धक्का बुक्के भी हो रही है, but people will come. अगर any festival रहा, रामनवमी रही है, जन्माष्टमी रहा, people will stand on big queue, they will tolerate everything just to take a darshan. Because why? They feel tranquil, they feel some kind of relationship with the Lord. Am I right? Or someone feels more agitated when coming to temple? ऐसा कोई है? शायद ही कोई होगा. It's very very नहीं है ऐसा actually. Because temple is not meant to make you more agitated, it's meant to make you tranquil, it's made to make you peaceful. That is the first, what to say, property or the attribute of temple, to relieve from your all kind of stress, anxiety, worries. काफी लोग काफी टेंशन में होते हैं. आई नो, लाइक व्हेन वी यूज्ड टू गिव द कार्ड्स ऑफ सेल्फ एक्सेलेंस. अब जिस प्रोग्राम में आपके आपको किसी ने कार्ड दिया होगा, तो काफी लोग आते थे मंदिर में से बैठे रहते थे, ऐसे बैठे रहते थे, देखते रहते भगवान को कि हमको कार्ड देने जाते थे. बट दे भी लाइक वेरी सम कि बोलते थे कि भाई हमारा जॉब का थोड़ा नुकसान हुआ है, बट यहाँ पे आके हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, वी आर फीलिंग लिटिल पीस. आई वॉज लाइक वेरी स्ट्रेसफुल, आई वॉज गोइंग सो एंड सो मच डिलीमा और सच एंड सच स्ट्रेस, बट नाउ आई एम फीलिंग सच सम रिलीफ मेड. तो ऐसा क्यों होता है टेम्पल में, क्यों होता है ऐसे? एनी रीजन? कुछ तो है टेम्पल में जो बाहर नहीं है. हाँ, पॉजिटिविटी होती है, यस. और क्या होता है? भगवान, यस, करेक्ट. भगवान है यहाँ पे, भगवान पर्सनली है यहाँ पे, राधा रस बिहारी इज स्टैंडिंग देयर टू ब्लेस यू ऑल. सो यहाँ पे एक्चुअली होता है कि यहाँ पे जहाँ पे भी डीटीज होते हैं और डीटीज की प्रॉपरली वर्शिप होती है, यहाँ पे वर्शिप हो रही है भगवान की. एंड नाउ ऑल्सो यू कैन हियर सम काइंड ऑफ कीर्तन इज गोइंग ऑन द टेम्पल हॉल, आरती इज गोइंग ऑन. सो दिस साउंड वाइब्रेशन मेक्स द प्लेस positivity positive, or the tranquil, peaceful, or release the so much what to say, positive vibrations. आजकल मेडिकल इंडस्ट्री में साउंड थेरेपी करके आया है कुछ, जिसको म्यूजिक थेरेपी भी बोलते हैं. एनीवन हर्ड ऑफ दैट? यस, इट्स लाइक अ ट्रेंडिंग कि हम वी आर टेकिंग म्यूजिक थेरेपी. सो इन दैट व्हाट दे डू, दे हियर सम काइंड ऑफ म्यूजिक. कुछ भी म्यूजिक हो सकता है, जैसे कि समंदर का आवाज सुन रहे जिससे आपको मन शांत हो जाएगा, और सम काइंड ऑफ बेल्स, मतलब कुछ भी. सो आप टेम्पल में आ रहे हो, यू आर हियरिंग दैट कीर्तन ऑटोमेटिकली, यू डोंट नीड टू पुट एनी काइंड ऑफ थेरेपी ऑन योर सेल्फ, यू आर गेटिंग थेरेपराइज, मतलब खुद की थेरेपी हो रही है अपनी आप. सो यू डोंट नीड टू पे टू एनी वन, यू कैन हियर कीर्तन, you can participate also in that. If you take music therapy, you just need to hear, but if you come to temple, you can dance also, you can sing also, and no one will judge you. That's the point. तो यहाँ से लेते हैं, शास्त्रों से लेते हैं चीज़ें लोग, द मॉडर्न साइंटिस्ट, एंड दे प्रेजेंट कि भाई वी आर इन्वेंटिंग समथिंग न्यू. देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर टेकिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स एंड प्रेजेंटिंग एज देयर ओन. तो ऑब्वियसली आप टेम्पल में आओ तो आप someone approach you and give you card, okay prabhu ji, okay, you have come to this temple, we are conducting this kind of session, please attend, we don't charge anything, these sessions are very nice. तो आप लोग आते भी हो यहाँ पे, एंड मोस्ट ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, एंड यू आर गेटिंग सो मच नॉलेज, सो मच एजुकेशन रिलेटेड टू भगवद गीता, भागवतम, ऑन वेरियस टॉपिक्स. तो जो सेकंड जो पॉइंट है हमारा, इस पे लेके जाता है एजुकेशन पे. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू केम टू टेम्पल, यू गॉट ट्रैंक्विल, यू गॉट पीसफुल बाय हियरिंग कीर्तन,
और बाय चैंटिंग आपको किसी ने अप्रोच भी किया होगा तो कि आप मंदिर में आइए तो एक माला जप करके जाइए। किसमें से आप में से कितने लोगों ने जपी है मंदिर में एक माला? ओह! काफ़ी लोगों ने जपी है। नाइस। यू मस्ट बी फील सम पीस, आपको पीस लगा होगा, आई होप। एंड देन समवन माइट गिव यू कार्ड बिकॉज़ आफ्टर पीस योर माइंड इज़ लाइक वेरी सॉर्टेड कि आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही है और क्या चीज़ें हमारे लिए गलत है। व्हेन वंस यू चैंट। So yeah, second thing which temple offers is the education, the scientific spiritual education, which outer universities never provide you. हमारी जो universities है they just make us money minded और money earning machine कि हमको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी है और हमको जॉब मिलानी है, पैसे कमाना है। दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ आवर लाइफ, दैट व्हाट्स दे से, but it is not the ultimate aim. What is the ultimate aim of our life? To know who we are and what is our relationship with the Krishna or the Supreme Personality of Godhead. That is the ultimate goal. That what we learn from here, from temple. Because here many devotees taught Bhagavad Gita or some other courses or some like customized courses. जिस तरह से ये course चल रहा है, it's very customized course, providing knowledge in very sophisticated way. तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है कि वाई, जिससे हमने कहा था वी ऑल डू, वी ऑल नो व्हाट वी नीड टू डू, वी ऑल नो व्हाट वी नीड टू स्टडी, व्हाट वी नीड टू ईट, वेयर वी नीड टू गो, बट वाई, इसका आंसर हमको मंदिर में मिलता है। So, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, बट व्हेन वी स्टार्ट आस्किंग वाई कि क्यों, तो इसका आंसर हमको मंदिर में मिलता है। हमको सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्हाट वी नीड टू डू, बट वाई वी नीड टू डू, why we need to do, why we need to study, why we need to earn, why we are living, why I am suffering, the basic questions, why I am here at the first place. This kind of questions can be answered only in temple. मंदिर में आपको इस तरह के आंसर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, मटेरियल लर्निंग इज जस्ट फॉर अर्निंग नॉट फॉर सर्विस, स्पिरिचुअल एजुकेशन कैन क्रिएट कल्चर ऑफ सर्विस। एक सेकंड, प्रो माइक तो स्टार्ट है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है आपको ऑनलाइन? समवन सेड आवाज नहीं आ रहा है, इट्स माय, आ रही है ना? ठीक है प्रभु, आई विल कंटिन्यू। स्क्रीन दिख रहा है ना ऑनलाइन में सबको? ओके, ठीक है। सो या व्हाट आई वाज सेइंग कि मटेरियल एजुकेशन हमको अर्निंग के लिए सिखाता है, बट नॉट द सर्विस एटीट्यूड। बट यहाँ पे वी लर्न द सर्विस एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, मतलब किस तरह से हमको सर्विस करनी चाहिए। बट हम मटेरियली भी सर्विस करते हैं तो इट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट। बेनिफिट मतलब कि हमको कुछ अर्न, कुछ पैसा मिले या फिर कुछ लक्ष्मी सॉरी कुछ रिकॉग्निशन मिले हमको। दैट्स व्हाट वी थिंक व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग एनी काइंड ऑफ सर्विस और एनी काइंड ऑफ अ टास्क। तो ये एक चीज़ है। सेकंड की विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज पीपल कैन बिकम इमोरल। इसके ऊपर कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई मैं तो भक्ति नहीं करता हूँ, मैं तो मंदिर नहीं आता हूँ, बट स्टिल आई एम मॉरल पर्सन। बोल सकता है कोई भी कि तो मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, बट दैट मॉरलिटी कैन चेंज एट सर्टेन पॉइंट। अगर कुछ कंडीशन आ जाती है then it's very easy to that person to become immoral. Within a second he can flip because of the lack of knowledge or the lack of foundation. The base foundation is that if I performing any activity I will get some reaction or some kind of fruits। मतलब मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, I will get some pious or impious or some punya or some papa। that filter will you have if you come to temple or if you are practicing Krishna consciousness spiritual life। that will think any आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले you will have that
check in the back of your mind, okay, why I'm doing this? Is it really moral or ethical? That kind of check you will always have. Spiritual education can help us find happiness. It points the way to better form of happiness. तो बेसिकली जब मतलब मेडिकल कॉलेज में जब स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, तो उनका जो मेन पर्पस ये होता है कि हमको पेशेंट को क्योर करना है, वी नीड टू क्योर द पेशेंट, दैट इज व्हाट दे आर टॉट। बट आगे चल के उस वो लोग इसी नॉलेज को मनी मेकिंग बनाते हैं कि हम किस तरह से पेशेंट को मतलब कितना इसको एक्सप्लॉइट कर पाए, दैट व्हाट्स कम इन देयर माइंड। दे नो व्हाट वी नीड टू डू, that we need to cure a patient, but why they don't know. To build a healthier society to build a healthier society, they lack this understanding. Many doctors say कि okay आपके पास पैसा नहीं, then we can't handle this patient, or they have the temptation to break the rule. Yeah, someone may say कि doctor take oath to cure the patient. Yeah, many people take that kind of oath कि I will cure the patient, I will take this responsibility, but still many people have the temptation to break the rule. जैसे कि simple example of traffic signal, we all know that at जब last signal लगता है we need to stop, but when there is no police वाला we have temptation to cross. We all know कि it's a not a good thing, it's a crime, but why we do that? We learn here in temple, when we connect with devotee, when we read books, when we attend such session. That is the thing. इवन तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस पुलिस रहने के बाद भी गाड़ी भगाते हैं हम लोग, दैट इज द मोर डेंजर अगेन। तो अगेन वन थिंग विच वी टॉट आर द ग्लैमराइजेशन ऑफ गोल, कि हमको जो गोल है हमारे लाइफ के काफी ग्लैमराइज करके बताते हैं कि हमको बड़े होके ये बनना है, वी नीड टू डू सच एंड सच थिंग, वी नीड टू बिकम वेरी वेल्दी, वी विल बी वेरी प्रेस्टिजियस, वी कैन बी वेरी, वी कैन एंजॉय, वी कैन हैव पावर, पोजीशन। हमको मतलब इस तरह के फॉल्स गोल जो हम उसको इजीली अचीव नहीं कर सकते, वेरी ग्लैमराइज, जिससे हम डिमोरस हो जाते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, एंड वी फील कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन आवर लाइफ। मतलब होता है हमारे साथ में कि हम लोग कंपेयर करने लगते हैं विद अ पर्सन, we never understand कि the competition is not the same for that person and for us। मतलब रिसेंटली कुछ ट्रेंड भी चल रहा था इस पे, आई थिंक इंस्टा पे, वी आर नॉट अ सेम ब्रो करके काफी लोग बोलते थे। तो इसके पीछे एक स्टोरी आती है कि एक बार जंगल में रेस लगती है, हाथी में, घोड़े में, जिराफ में, उसमें एलिगेटर भी आता है, और कौन सा प्राणी है, चीता भी आता है, कुत्ता भी जाता है, मतलब अलग अलग तरह के प्राणी जाते हैं, एंड गेस हु विंस द रेस? चीता। तो ये जो रेस थी तो मिक्स, इसमें सारे मिक्स आए ना, घोड़ा आया, चीता आया, अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स आए थे, एलिगेटर आया जो कि एक्वेटिक है। तो इट वाज लाइक अ वेरी अनफेयर रेस। अगर घोड़ा घोड़े के साथ रेस करेगा तो वी कैन सी या दैट हॉर्स इज द बेस्ट हॉर्स। अगर चीता चीता के साथ रेस करेगा, वी कैन से ओ दिस एनिमल इज द फास्टेस्ट among the cheetahs। but what we do, we race with the different people which is having different caliber, and we become demorous। but demorous मतलब नाराज हो जाते हैं हम लोग, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि our real self, we don't understand that we are the spirit soul, part and parcel of Krishna। हम कृष्ण के भक्त है, we are the जीवरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। we fail to understand this kind of knowledge, that's what we get here। तो तो अलग अलग टाइम में जैसे कि अलग अलग तरह की समस्या होती थी, ये जो समस्या है ये कॉमन रहेगी हमेशा, कि वी आर नॉट स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, वी फेल टू अंडरस्टैंड। और जो बाकियों की समस्या है दैट मेट गेट चेंज। 50 साल पहले कुछ और समस्या थी, मतलब मटीरियली 50 साल पहले वॉट एवर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, स्मार्टफोन नहीं होगी, अभी है। अभी जो समस्या है वो आगे चल के वो समस्या नहीं होगी, अभी कुछ अलग समस्या है जो पहले समस्या नहीं थी। जैसे एक रिसर्च आई थी, उसमें बता रहे थे कि जो कुछ साल पहले जो बच्चे थे स्कूल में, वो अलग तरह की शरारतें करते थे, मतलब चिल्लाना, बोर्ड पे लिखना, या फिर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालना, या फिर सबसे ज़्यादा बदमाशी डेस्क के नीचे नीचे च्युइंगम चिपका देना। ये एक रिपोर्ट थी, दैट वाज द मोस्ट मिशियस एक्टिविटी विच चिल्ड्रंस वर डूइंग। बट अभी वापस ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, और उसमें ये पाया गया कि रेप्स, सुसाइड, फ्रस्ट्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट,
दीज आर दी थिंग्स विच चिल्ड्रंस आर गेटिंग सफर्ड. मतलब चिल्ड्रंस तो वही है बट समस्या बदल गई. वाई? बिकॉज वी डोंट हैव द एग्जैक्ट एजुकेशन कि हमको क्या करना चाहिए. पेरेंट्स को भी पता नहीं है और ऑब्वियसली बच्चों को भी पता नहीं रहता, क्योंकि पेरेंट्स नेवर ओपन दी भगवद गीता. दे आर कम्प्लीटली एंगेज इन देयर सेंस ग्रेटिफिकेटरी प्रोसेस एंड और बच्चों को फिर उसके ऊपर अफेक्ट होता है. सो इस तरह से चीजें काम होती हैं. The Mahabharata explains that before we acquire material pleasure, we hanker for it. When we acquire it, we worry about losing it. And we inevitably lose it. We lament over the loss. मतलब ये तो सबको पता है. हम किसी चीज़ के पीछे काफ़ी पागलों जैसे पड़ जाते हैं. We hanker it, we endure it for so much. And when we acquire it, हमको वो डर लगा रहता है कि भाई ये हमारे से छूट ना जाए, चली ना जाए. और वो होता ही है वो. हम जिस चीज़ के पीछे पागल होते हैं वो एक ना एक दिन चली जाती है. We lose it and when we then after that we lament. तो ये जो मटेरियल एंजॉयमेंट है उसको एक्रोनिम करके मतलब टाइम करके एक्रोनिम भी किया है. टाइम, टेम्पररी, इल्यूजनरी, मिजरेबल एंजॉयमेंट. मतलब यूथ में तो काफ़ी रहता है कि कुछ टेम्पररी के पीछे हम लोग भागते हैं, बट इट्स ऑल इल्यूजनरी. मिजरेबल मतलब इट विल मेक अ मेस ऑफ यू. मतलब आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ेगी. इफ यू आर इनटू अ ड्रग्स और सम एडिक्शन, इससे लॉस होता है. स्पिरिचुअल एजुकेशन पॉइंट्स द वे टू अ बेटर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दैट कैन नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम अस. तो काफ़ी लोगों को अलग अलग तरह का एडिक्शन रहता है एंड उसका उसको छुड़ाने के लिए काफ़ी अलग अलग तरह के उपाय भी करते हैं. बट होता है ऐसे कि आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो फेल होते हैं एंड वी अगेन ग्रैब दैट एडिक्शन और दैट थिंग. जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे नवंबर चल रहा है तो नो फैब नवंबर बोलते हैं कि हमको नवंबर में मस्टरबेट नहीं करना है. बट दे फॉल डाउन because they don't have this kind of education, this kind of knowledge, or this kind of practice, which only comes when we associate with devotees and when we take such kind of education. That is the point. तो इसलिए कभी कभी टेम्पल एक्ट्स एज यूनिवर्सिटी ऑल्सो, जो हमको एजुकेशन देता है एंड साइमल्टेनियसली उसके ऊपर मेडिसिन भी देता है कि व्हाट आर द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू वी डील इट. या मेडिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट. See, everything is getting related now. T, E, now M, medication. तो पॉइंट पढ़ता हूँ मैं. फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, all improper, immoral behavior are symptoms of a diseased mentality. मतलब से तो सीधी सी बात है. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो भी इमोरल है, इम्प्रॉपर जो बिहेवियर है वो तो मतलब मेंटली डिसीज है. अब यहाँ पे मेडिकेशन की बात की तो 6 तरह के जम्स भी होते हैं. लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड एंड इल्यूजन्स. जैसे लस्ट से रेप एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स आते हैं. ग्रीड से करप्शन एंड फाइनेंस रिलेटेड क्राइम करते हैं. एंगर से तो टेररिज्म और वायलेंस होता है. अलग अलग तरह से आते हैं. और यहाँ पे होता है कि वैदिक स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन्स रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इज ओनली क्योर टू दिस इन्फेक्शन ऑफ माइंड. तो जो हमको जो इन्फेक्शन होता है माइंड को, जो 6 तरह के जो यहाँ पे रोग या फिर जेम्स बताए हैं, तो उसके ऊपर एक ही दवाई है, वो है हरिनाम संकीर्तन, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा. इसके पीछे जो क्रिस मैथ्यू है, इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री अटलांटा की, उनकी स्टोरी बताना चाहूँगा मैं. ये जो क्रिस मैथ्यू थे वो इट वॉज अराउंड 1980s का टाइम है. वो ना ड्रग एडिक्ट थे और उसके चक्कर में वो पकड़े गए थे और उनको 8 साल की जेल हुई थी. तो 8 साल की जेल हुई थी. तो जब भी कोई पर्सन जेल में जाता है तो इट्स ऑन गवर्नमेंट कि उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी हेल्थ का ख्याल मतलब उसकी हेल्थ का चेकअप करते रहो. तो गवर्नमेंट पे एक्सपेंस बढ़ता है. तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई अगर कोई बंदा जेल में आ रहा है देन ही शुड नॉट कम अगेन. मतलब कोई ससुराल नहीं है कि आप बार बार आओ, ऑब्वियसली ना. मतलब जोक में बोलते कि ससुराल. तो गवर्नमेंट मेक श्योर कि कुछ रिफॉर्मेटरी एक्टिविटी, कुछ रिहेबिलिटेट एक्टिविटी, मतलब उनका रिहेबिलिटेशन करें हम, ताकि वो वापस ना आए. तो इसलिए वो अलग अलग तरह के सेशंस रखते हैं, रिफॉर्मेटरी सेशंस, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, मतलब अलग अलग तरह के रखे थे. उसके ऊपर उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा. ही वॉज स्टिल वेरी मेस्ड, क्योंकि जेल में उसको ड्रग्स नहीं मिल रहे थे एंड ही वॉज गेटिंग अ विड्रॉल सेंटेंस एंड इट वॉज मेकिंग हिम वेरी मस्ट वर्स पर्सन. तो ही वॉज लाइक प्रेइंग कि भगवान आप बचा लो मुझे. ही
he was praying to Jesus Christ, please send someone, send some help, I'm very suffering. And he prayed very sincerely. Actually, I read his bio. And after some time, Gita Marathon started in December in Atlanta, and he received a copy of Bhagavad Gita in his cell, and he started reading. And in the second chapter, he read that I am not this body, we are not this body, we are a spirit soul. And that point struck his mind कि भाई मैं body नहीं हूँ, I am the spirit soul. And जो भी suffering है, it's due to the I am I am considering myself as a body. And he started reading Bhagavad Gita again and again, again and again, and read करते करते वो he came to know that there is a Hare Krishna Mahamantra. We need to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he started chanting that every day. और उसने पढ़ते 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 वो ही केम टू 16 चैप्टर्स, सॉरी सम चैप्टर्स वेर इट वाज रिटन कि हमको वेज ही खाना चाहिए. एंड ही स्टार्टेड टेकिंग वेज फूड ओनली इन जेल. when he reads certain verse, that we need to offer it to Krishna. He started to offer it to Krishna in the jail. He used to take veg food and he started offering, and he started taking that as a prasad. तो इस तरह से उसने 8 साल निकाल लिए जेल में. And when he came out, he asked his children to start chanting, to offer food to the Lord, and be a vegetarian people. It was all in the Atlanta in the US. तो ये तो हुई उसके घर की बात. But he got so much into the bhakti process. He thought कि ये बुक जिसने भी लिखी होगी इसको कोई ना कोई लोग फॉलो कर रहे होंगे. I definitely need to meet them, how these guys are doing. And he started to look for the devotees. उसको कुछ भक्त मिले, and he started to serve with them. And the most service he took is the related to jail. He started giving Gita in the jail because he was in the jail and he know how people are in the jail. So he started that service. Over a certain period of time, he became the prison minister of ISKCON. ISKCON में अलग अलग डिवीजन है, लाइक प्रसादम डिपार्टमेंट, दिस सेशंस के जो होते हैं, प्रीचिंग डिपार्टमेंट. उसी तरह से प्रिजन मिनिस्ट्री भी है, लाइक प्रिजन डिपार्टमेंट, जो प्रिजन में जाके प्रचार करते हैं, उनको गीता देते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, उनसे चैंटिंग कराते हैं ताकि उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो. सो वी कैन सी फ्रॉम प्रिजनर ही बिकम द प्रिजन मिनिस्ट्री और प्रिजन मिनिस्टर ऑफ ISKCON. So you can see the difference. It's a very huge jump he took in the 8 years or 8 to 9 years of span. So why it's happened? It has happened due to the medication. अगर कोई बीमार है, when he can get healthy by the meditation. Similarly, he was having these kinds of jumps in his heart, like a lust, anger, greed, envy, pride, illusion, and it got cured by the Bhagavad Gita, by the chanting and by taking the prasadam. तो कोई बोल सकता है कि भाई ये तो कैसे हुआ. तो पद्म पुराण में बोलते हैं कि अभिनत्व नाम नामिनो, मतलब भगवान का जो नाम है और भगवान का जो फॉर्म है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे अगर मुझे प्यास लग रही मुझे प्यास, और मैं पानी 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 बोलूँगा, तो ऐसे नहीं कि मेरी प्यास बुझ जाएगी. अगर किसी को अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम कृष्णा 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 बोल रहे हैं, तो व्हेन वी से कृष्णा, तो कृष्णा इज विथ अस, कृष्णा इज डांसिंग ऑन आवर टंग. तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में कोई फर्क नहीं है. ही इज ऑन द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म. मतलब भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान के जो शब्द है गीता में और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है. अगर आप भगवान के शब्द दोहरा रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, इट मीन्स यू आर एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड. तो द सिंपल वे इज द चैंटिंग. बाय चैंटिंग, लाइक वी अब सबको लोगों को इनकरेज किया जाता है कि चैंटिंग करिए. इट्स लाइक टेकिंग मेडिसिन इन अ वेरी सॉलिट्यूड प्लेस. एंड अनदर इज संकीर्तन. जैसे टेम्पल में चलता है कि आप मृदंग करताल के साथ में कीर्तन करते हो, तो इट्स क्लीन्स योर हार्ट मोर. इट्स लाइक अ मेडिसिन टू योर हार्ट. तो उसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि इनिशियली आप जब टेम्पल में आते हो, आपको कुछ पता नहीं, कोई कीर्तन नहीं चल रहा, आपको हाथ में माला दिया कि जपो. अभी आप जपोगे क्या? कोई नहीं जपेगा. बट आप टेम्पल में आते हो, आप सुन रहे हो कीर्तन, हरे कृष्णा म्यूजिकली बज रहा है, अब साथ साथ आप उसको गाने भी लग जाते हो. सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट आवर भक्ति इजीली. तो ये जो भक्ति प्रोसेस है, इसके फाउंडर है चैतन्य महाप्रभु. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, who came around 500 years back, and he started this culture or this foundation. He made the foundation of congregational chanting of Harinam. तो उसको भी अकबर ने ग्लोरीफाई किया, बिकॉज when अकबर केम इन कॉन्टेक्ट विद devotees who were chanting, तो अकबर ने कहा कि ओ चैतन्य, द विक्टर ऑफ माई हार्ट, ओ माई हार्ट्स लॉर्ड, हाउ कैन आई एक्सप्रेस द लव आई हैव फॉर दी.
तो उन्होंने ये उनके इसमें कोट किया था, इवन दो बॉर्न एज अ मोमेडियन, सो कॉल्ड मोमेडियन, एंड चैतन्य महाप्रभु बॉर्न एज अ हिंदू, मतलब एज सच कोई डेजिग्नेशन नहीं होती, but still his heart got purified for that moment, and he cared to mention that. So Sankirtan is like a ultimate dance meditation, बिकॉज मेडिटेशन तो हम लोग करते हैं, और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में मतलब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इमेज आती है कि ऐसे बैठना है, हाथ ऐसे करने हैं, आंखें बंद करके ओ ऐसे करना है, मतलब हमको यही पता है, और टीवी में भी मूवीज में भी इसी तरह से दिखाते हैं, बट मेडिटेशन इज मोर एलाबोरेट देन दैट. जब हम बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन, व्हाट वी डू, वी चैंट, वी से हरे कृष्ण राम इन द हरे कृष्ण महामंत्र, एंड वी ट्राई टू लिसन दैट. ऐसे नहीं कि हम बस बोल रहे हैं, हमको ये भी कोशिश करनी है कि हमको साइमल्टेनियसली सुनना है, हर एक सिलेबल क्लियरली हमको सुनना है. तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, chanting and reciting. So that is engaging your two senses right now. Your speaking, your tongue as well as your ear. अगर आप माला पे कर रहे हो, then your touch is also getting engaged. Your जो आपका जो touch sense है वो भी engage हो गया. Like you are engaging your senses in the meditation. That is meditation to remember. तो जब मेडिटेशन करते हो भगवान के सामने या फिर आप अकेले में, तो उससे आपका हृदय में ये होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, जिससे आपके हृदय में जो भी मल है, मल किसका, जो 6 जम्स बताए थे मैंने, क्या 6 जम्स थे, यस, तो वो कील होते हैं, मतलब प्यूरिफाई होता है हमारा हार्ट, और हार्ट जब प्यूरिफाई होता है एंड वी फील लाइक वेरी ब्लिसफुल, तो दैट इज द सेकंड प्यूरिफिकेशन. सी मेडिफिकेशन से आए प्यूरिफिकेशन से. तो spiritual knowledge and practice are not meant only to make bad people good, but also make good people better and better till they become the best they can be. तो गीता में 4.2 में बता रहे भगवान की जो नॉलेज है, मतलब ये कैसे आता है, डिसिप्लिक सक्सेशन से आता है. भगवान ने सबसे पहले नॉलेज दिया था सन गॉड को, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मतलब जब अर्जुन को बता रहे थे तो अर्जुन को बताते कि ये जो नॉलेज है मैंने तुमसे पहले सन गॉड को दिया था. सन गॉड को आया था ये, इक्ष्वाकु को आया था, और इक्ष्वाकु से मनु को आया था ये. बट इस दौरान ये जो चेन चल रही है ब्रोक हो गई थी डिसिप्लिक सक्सेशन की, इसलिए मैं तुमको ये वापस बता रहा हूँ. तो ये नॉलेज जो है इट्स लाइक अ किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राज विद्या है ये. किंग को इसलिए दिया जाता है, और किंग ताकि वो, क्योंकि वो सोसाइटी का लीडर है, और जो भी लीडर करता है उसको सब लोग फॉलो करते हैं. तो जो मेन बात है इसमें जो प्यूरिफिकेशन की, यहाँ पे लिखा है प्यूरिफिकेशन इज द की दैट अनलॉक्स द ट्रेजर ऑफ हैप्पीनेस लॉक्ड इन आवर ओन हार्ट. तो ऐसे नहीं कि हम जब भक्ति में आते वी स्टार्ट कृष्णा प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट वी आर डूइंग समथिंग न्यू, ऐसे कभी नहीं है. कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति हमारे हृदय में ऑलरेडी है. ऐसे नहीं कि हम अलग से भक्त बन रहे हैं, फिर अलग से हमें भक्ति आ रही है. हमें ऑलरेडी भक्ति है हमारे हृदय में, बस हुआ ऐसे कि हुआ यही कि वो फिलहाल डॉर्मेंट स्टेज में है. इट इज राइट नाउ इन द इनएक्टिव स्टेट. इट नीड सम काइंड ऑफ पुश, सम काइंड ऑफ अ शेक फ्रॉम द डिवोटीज, क्योंकि उसके ऊपर काफी मैल धूल बैठ गई है. when we come in contact of devotees or some prasad, some activities or devotional activity, it get resume from the point where it stop. तो ऐसे नहीं कि हम ऑलरेडी भक्ति नहीं, हम भक्त नहीं, हम भक्त बन रहे. वी आर ऑल डिवोटीज बाय नेचर, क्योंकि हम भगवान बार बार गीता में बोल रहे कि जी मेरे बोल रहे कि हम आई एम द सीड गिविंग फादर, मतलब आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. जीवन स्वरूप में कृष्ण रहते था, सारे जो लिविंग एंटिटीज है वो कृष्ण के दास है. इट्स मींस ऑल वी आर ऑल डिवोटीज, बट वी आर इन दी फॉरगेटफुल स्टेट. बट व्हेन वी रिमेंबर we start appreciating Krishna and the kind of reciprocation starts. So ये कब होता है, when we become purified. बट प्यूरिफाई कैसे हो गए हम लोग, दैट इज द क्वेश्चन. प्यूरिफिकेशन तो बोल दिया टेम्पल में हो रहा है, बट कैसे होगा, एनी आइडिया? आप लोग आ रहे हो काफी समय से ये वाला ग्रुप, कैसे हो सकता है प्यूरिफिकेशन? Yeah, that is the easiest way in the current time. Yes, by yes, that is little higher. Yes, kirtan, lectures. यस, प्रसाद से भी प्यूरिफिकेशन होता है. मैं तो प्रसाद के लिए आता था, आप लोग. यस, 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 यस. So all the activities which are related to Krishna,
hearing, reading, chanting, prasad, serving, cleaning the temple, taking the darshan, worship, every associating with the devotees, associating with the senior devotees, that all comes into the purification because they gives us some kind of sukruti. सुकृति सुना है किसी ने इसमें से? पाप और पुण्य सुना है? यस, पाप पुण्य सबको होता है. सुकृति इज लाइक अ समथिंग वेरी स्पेशल विच वी ओनली गेट इन डिवोशनल लाइफ. सुकृति से सुकृति इज लाइक अ वेरी टू से सेटिस्फैक्शन, या वो भी बोल सकते हैं. यस, सेटिस्फैक्शन भी है. सुकृति मीन्स क्रेडिट बोल सकते हैं इंग्लिश में, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स. जैसे कि आपका अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, उस तरह से आपका स्पिरिचुअल अकाउंट होता है. एक तो पाप पुण्य का अकाउंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको सफरिंग और एंजॉयमेंट मिलता है आपको. बट जो प्रारब्ध है आपका, जो स्पिरिचुअल अकाउंट है, दैट नेवर गेट डिमिनाइज. जैसे मतलब आपने कुछ पुण्य किया, आपने काफी पुण्य किया, आप स्वर्ग में चले गए, आपको अच्छी पोजीशन मिली, आप वहाँ पे एंजॉय करोगे. कब तक एंजॉय करोगे? जब तक आपके पास जब तक आपके पास पुण्य है. एक बार आपके पुण्य खत्म हो गया, आपको आपका फॉल डाउन वापस इस धरती पे होगा एंड यू विल स्टार्ट अगेन. मतलब आपके अकाउंट में जब तक पैसा है आप तब तक ही खर्च कर सकते हो, स्वाइप कर सकते हो आपका कार्ड. एक बार कार्ड खत्म हो गया, देन यू बिकम बिगर. तो उसी तरह से आपके जो पायस क्रेडिट जब खत्म हो जाते हैं, यू कम अगेन बैक टू दिस वर्ल्ड, भूर लोग. बट भक्ति के केस में ऐसे नहीं है. भक्ति के केस में अगर आपने भक्ति इस बर्थ में स्टार्ट की है और किसी तरह से आप कंप्लीट नहीं कर पाए, लेट्स से आपने 50% कर ली, तो आप जब नेक्स्ट बर्थ लोगे तो आपकी भक्ति वापस रिज्यूम होगी वहाँ पे. इसके एश्योरेंस भगवान ही ले रहे गीता में, बोल रहे कि निया विक्रम नाशस्त्री प्रत्यावायु न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्म से त्रायते महतो भयात. मतलब लिटिल एंडेवर ऑन दिस पाथ कैन सेव यू फ्रॉम दी महतो भयात. त्रायते महतो भयात मतलब ग्रेटेस्ट डेंजर, आपको काफी बड़े डेंजर से बचा लेगा. काफी बार ऐसा होता है कि कुछ बड़ा एक्सीडेंट होने वाला रहता है, बट छोटे से इससे हम बच जाते हैं. तो इट इज लाइक कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग सम टाइम. भक्ति में जो लोग आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि छोटे से बड़ा एक्सीडेंट होने वाला रहता है तो छोटे से बच जाते हैं. इट्स लाइक दे विल गेट सम कट एंड दैट थिंग. तो प्यूरिफिकेशन से जैसे कि काफी लोग बोलते हैं बाहर की कि वी विल मेक अ बेटर सोसाइटी और विल मेक अ थिंग्स बेटर. मतलब बाहर का जो एजुकेशन है, विल मेक अ बेटर थिंग्स, विल मेक अ बेटर स्मार्टफोन, विल मेक अ बेटर लैपटॉप, बेटर बिल्डिंग्स, इस तरह की बातें करते हैं. बट प्यूरिफिकेशन में क्या होता है? लेट्स मेक अ पीपल बेटर. बट वी विल बिकम अ बेटर पर्सन. यू विल बिकम पर्सन हु इज नॉन एनवियस, नॉन लस्टीफुल, नॉन ग्रीडी पर्सन, अ कंप्लीट प्योर पर्सन, उस तरह से. तो दिस इज प्यूरिफिकेशन. तो प्यूरिफिकेशन का सिंपल जो आपने कहा था, इट्स बाय हियरिंग. तो एक राजा हुए हमारे भारतवर्ष में जिनका नाम था किंग कुलशेखर, राजा कुलशेखर. He was ruling the southern part of India and he was a very great devotee of Lord Ramachandra. तो उनको भगवान के बारे में सुनना, स्पेशली रामायण, दिस वाज वेरी फाउंड ऑफ दैट. एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन व्हेन रामायण स्टार्टेड, तो जो भी भक्त थे मंदिर में जाते थे, उनके दरबार में जाते थे, ही यूज्ड टू रिसाइट द रामायण. एंड जब वो वाला पार्ट आता था जहाँ पे भगवान रामचंद्र ये बना रहे, पुल बना रहे हैं लंका जाने के लिए, एंड वहाँ पे सारे वानर उनको हेल्प कर रहे हैं, तो राजा कुलशेखर को काफी ये लगता था कि अरे भगवान रामचंद्र अकेले बंदरों की सहायता लेके ब्रिज बना रहे हैं, मैं मेरी सेना लेके जाऊंगा वहाँ पर उनकी मदद करूंगा. तो वो कथा में इतना लीन हो जाते थे कि ही वॉज थिंकिंग कि रामचंद्र अभी भी है और अभी भी पुल बना रहे. तो वो तुरंत रेडी हो जाते थे, अपना घोड़ा निकलते थे, सारी प्रजा को लेके और सारे सिपाही को लेके चलते थे कि हमको जाना है साउथ में, कन्याकुमारी पे, हम वहाँ पे जाके रामचंद्र की हेल्प करेंगे ब्रिज बनाने में. तो वो निकल जाते थे, किसी की नहीं सुनते थे. तो ये मिनिस्टर्स परेशान हो जाते थे कि अभी राजा को कैसे बताएं कि ये तो हो चुका है. तो वो क्या करते थे कि सामने से किसी को भेजते थे कि भाई तुम लोग सामने से आना और बोलना कि ब्रिज कंप्लीट हो गया है एंड रामचंद्र चले गए लंका और उन्हें रावण को मार दिया, जीत गए वो लोग, वापस अयोध्या चले गए. तो उनके मिनिस्टर्स इस तरह के प्लान करते थे. और जब राजा रास्ते लगते थे तो सामने से कुछ लोग आते थे खुशी खुशी में कि रामचंद्र जीत गए, पुल बन गया, रावण को मार दिया. तो वो सुनते थे राजा कुलशेखर और काफी खुश हो जाते थे. एंड ही यूज्ड टू गो बैक अगेन टू हिज पैलेस. तो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने फिर ड्यूटीज को बता दिया कि आप जब भी रामायण रिसाइट करोगे
तो ये वाला पास टाइम कभी रिसेट करना ही मत कि सीता का हरण हुआ है और मतलब सीता को लेके जाने के लिए रामचंद्र ब्रिज बना रहे हैं क्योंकि राजा आएंगे वहां पे। तो उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, ऐसे हम रिसेट नहीं करेंगे। तो एक बार, सॉरी माय बैड, मैंने कुछ गलत बता दिया। हुआ ऐसा था कि फर्स्ट टाइम जो जो सीता का हरण हुआ था तब ही राजा गॉट एंग्री। तो वो रावण को मारने के लिए जाता था बार बार। तो उन्होंने वो पास टाइम स्किप कर दिया बताना। और सेकंड टाइम ऐसे किया उन्होंने कि सेकंड टाइम ऐसा हुआ कि जो डिवोटीज उनको पास टाइम बताने जाते थे वो किसी कारणवश जा नहीं पाए। तो उन्होंने किसी और डिवोटी को भेज दिया। तो उसने जाके बता दिया राजा को कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब कथा करते करते। और तब दरबार में ज़्यादा डिवोटीज नहीं, मतलब जब ज़्यादा दरबारी नहीं थे तो उनको संभालने, राजा को मतलब वो रोकने के लिए। तो राजा निकल पड़े और निकलते निकलते वो साउथ में पहुंच गए, कन्याकुमारी तक। तो वहाँ पे राम चंद्र आए और उन्होंने मतलब उनको दर्शन दिए एंड उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स भी दी कि तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और तुम्हारे राज्य में एवरीवन विल बी हैप्पी एंड दे विल बिकम माय डिवोटी। और उन्होंने उनको अपना एक फॉर्म दिया राजा कुलशेखर को, जो कि अभी भी साउथ में है, जिनकी वर्शिप की जाती है। तो दिस वाज द स्टोरी रिलेटेड टू राजा कुलशेखर। और एक बात है कि राजा कुलशेखर हमेशा राम जी को डेली रिपोर्ट देते थे। मतलब उनके दरबार में डीटीज थे रामचंद्र जी के, और उनको डेली रिपोर्ट के रूप में बताते कि आज दरबार में ऐसा ऐसा हुआ, इतने लोग आए, इतना डोनेशन आया, इतना ये हुआ। तो इट वाज लाइक दिस सर्विटिव एटीट्यूड। तो इसकी ट्रेनिंग भी हमको टेम्पल से मिलती है कि हमको भगवान को किस तरह से सर्व करना है। तो जबकि हम प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है। पर तो उस श्लोक में बताया कि भगवान की आई एम द सुपर मोस्ट प्यूरिफायर। मुझसे ज़्यादा प्यूरिफाइड कोई नहीं है। आई एम द टॉप मोस्ट पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम मम। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जब छोटा बच्चा चड्डी में सूसू पोटी कर रहा है तो उसकी मदर उसको धो के सुखाने के लिए डालती है सन में। तो इससे तो उसकी जो चड्डी है, जो भी कपड़े हैं, दैट गेट्स प्यूरिफाइड, दैट गेट्स सैनिटाइज। बट सन कभी उससे इम्प्योर नहीं होता है। ऐसे तो नहीं है कि सन कभी इम्प्योर हो गया। अगर रास्ते में भी अगर कुछ टट्टी पड़ी है तो इट्स बिकम प्यूरिफाइड। So it's like the same with the Krishna. If anyone comes in contact with Krishna, that person becomes purified. काफी लोग बोलते हैं कि that I am eating non-veg, I am drinking. How can I come to temple or how can I touch the Bhagavad Gita? It's not that. It's not like that. That you will make the Bhagavad Gita impure. It's like the ulta. You will get purified by touching Gita, and you will get more purified by reading it. It's like that. तो काफी लोगों में misconception होता है। या यहाँ पे देखे हम यूटिलिटी फॉर्म से। यस। हाँ, तो जो आपने किसी ने वर्शिप कहा था कि वर्शिप से प्यूरिफिकेशन होता है, आपने कहा था ना? यस। तो कोई बोल सकता है कि वर्शिप से कैसे प्यूरिफिकेशन होता है? क्योंकि इस मंदिर में तो वो मूर्ति रखी है, उसको वर्शिप करेंगे तो कैसे प्यूरिफिकेशन होगा? तो एक्चुअली में जो मंदिर में जो है उसको मूर्ति नहीं बोलते, उसको अर्च विग्रह बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डीटी एंड आइडल। डीटी इज लाइक इट इज हैविंग द लाइफ इनसाइड एंड आइडल इज लाइक मूर्ति, बेजान। दो शब्द है ये, मूर्ति और विग्रह। जब मूर्तिकार होती है, इवन डिटेल्स भी दी है कि किस तरह से बन सकती है, स्टोन, वुड, मेटल, अर्थ, पेंट, सैंड, द माइंड और ज्वेल, उससे बन सकते हैं भगवान का फॉर्म। तो एक पूजा होती है, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जिससे भगवान का आह्वान किया जाता है, भगवान को इन्वाइट किया जाता है कि आप आइए, इस मैटर में समा जाइए, सो दैट वी कैन सर्व यू। दैट इज द पॉइंट। तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी होता था कि हम भगवान को परस्यू कर पाएँ। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह पे है, बट हम भगवान को परस्यू नहीं कर पाते। क्यों? वी आर नॉट दैट कैपेबल कि टू परस्यू कृष्णा एवरीवेयर। जिस तरह से वाटर वेपर्स, इट्स इन द एटमॉस्फेयर, बट वी कांट परस्यू इट। वी नीड अ टैप वाटर और वाटर बॉटल टू एनक्विश आवर थर्स्ट। तो इसी तरह से वी नीड डीटी फॉर्म कृष्णा सो दैट वी कैन वर्शिप एंड गेट प्यूरिफाइड। ठीक है, ये स्टोरी इसके पीछे है। जैसे कि अभी कोई बोल सकता है कि भाई
डीटीज जो भगवान की मूर्ति है वो भी पत्थर की बनी हुई है, तो आप कैसे समझोगे इट इज एक्चुअली अ टीटी और नॉट? मतलब ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरे पे कैसे क्यों भरोसा रखोगे? हाउ यू विल वेरीफाई इट्स एक्चुअली डीटी, एक्चुअली में भगवान है, एक्चुअली कृष्णा है? कुछ प्रोसेस तो होगी वहाँ पे। By worshipping them, by asking them, by praying to it, it will respond to you. Krishna will respond to you. It's as simple as that. You can try it out. तो ये एग्जाम्पल था कि एक बच्चा था और उसकी मदर ने उसको कहा था कि जो कचरा पड़ा है रद्दी का उसको तुम फाड़ दो। तो कचरे में उस बच्चे को 500 का नोट या फिर 1000 2000 का नोट दिख जाता है, मिलता है, और उसको भी फाड़ने वाला होता है वो, लेट से 500 का नोट। तो उसकी मदर उस पर चिल्लाती कि अरे बेटा ये मत फाड़ो। तो बेटा बोलता है कि ये तो सेम है, तो ये भी कागज ही है, जो कागज फेंक रहा था, जो फाड़ रहा था, ये 500 का नोट वो भी कागज ही है, सेम ही तो है। तो उसकी मदर उसको समझाती कि बेटा ये जो रद्दी है इससे तुमको कुछ मिलेगा नहीं, बट ये जो 500 का नोट है इससे तुमको 500 चॉकलेट मिल जाएंगे। तो बोथ आर पेपर्स बट यू कैन सी द वैल्यू। 500 का नोट की दे हैव सम वैल्यू और रद्दी का कुछ वैल्यू नहीं। इसी तरह से जो मंदिर में जो मैटर से जो भगवान बने, इट्स हैव सम वैल्यू, इट्स हैव सम लिविंग फोर्स इनसाइड इट। हाउ दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड। ये तो मैंने बताया कि और एक चीज़ की अभी हम बोल रहे हैं कि भगवान मैटर में आ सकते नहीं आ सकते, तो इट्स मीन्स दैट वी आर लिमिटिंग हिम। एक तरह से हम बोल रहे हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी रूप ले सकते हैं, तो भगवान डीटी फॉर्म क्यों नहीं ले सकते? मतलब भगवान के ऊपर तो हम अंकुश लगा रहे हैं, दैट इज दी इनकरेक्ट। तो सबसे ज़्यादा प्यूरिफिकेशन तो जब हम डीटी वर्शिप करते हैं, किसके घर में है क्या डीटी आप में से? किसी के घर में नहीं, ओके दैट्स। तो डीटी वर्शिप मतलब भगवान को भोग लगाना, भगवान के कपड़े चेंज करना। आपके घर में, यस यू मस्ट बी नोइंग। तो भगवान के कपड़े चेंज करना, भगवान को भोग लगाना, क्लीनिंग करना अल्टर की, तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। मतलब आपको एक पर्सन को हम जिस तरह से ट्रीट करते हैं, इज द सुप्रीम पर्सन, उनको उसको काफ़ी रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं, जिससे हमारा एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ जाता है। तो दैट्स मेक्स मोर प्यूरिफिकेशन बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, हम किस तरह से उनको सर्व करें। ये भी हमने देखा बाय वर्शिपिंग। तो पुजारीज तो ये सेवा काफ़ी समय समय तक करते हैं। मतलब आप किसी मंदिर में जाइए तो कोई भी पुजारी आप देखिए वो सालों से वर्शिप करेंगे भगवान की। ऐसे नहीं कि पुजारी बदल रहे हैं। अगर ये कोई एक्टिविटी होती, मतलब कोई नॉर्मल टास्क होता, तो आप बोर हो जाते।